Biological classification. This is the second chapter of our NCERT NEET syllabus, and we have done the first chapter of 11th standard, the unit 1. तो पहला चैप्टर हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किया था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन सिस्टम, which is the most accepted system of classification. This thing we will study. The main emphasis is given on the five kingdom system classification, which was given by R.H. Whitaker. So now we are starting our chapter number 2, biological classification. We will again study the chapter with the help of the PowerPoint presentation made by me. And before starting with the classification, we will study the definition of the classification. There are various ways to classify the organism. Some primitive systems of classification. Those primitive systems of classification, they are called the artificial systems of classification. And they are given in very older days. They were given by some older philosopher like Theophrastus. So most of those classification systems were based on morphological characteristics. They comes under artificial system of classification. Later on, comparative studies are done between various plant division and various groups of animal, and natural system of classification is developed, which consider more than one character, and it also study the similarities and dissimilarities between different groups of organism. For plants particularly, the natural classification system was developed by Bentham and Hooker. They wrote their book Genera Plantarum, and with the help of the volumes of book Genera Plantarum, the plant kingdom is precisely studied. Some of the more classification systems, they were the phylogenetic systems of classification, are totally based on the evolutionary relationship between organisms, different group of individuals. So in this chapter we will study the classification system. So now we are starting the chapter number 2. This is the brief introduction of the classification which I have given in the beginning. Now what is mean by the classification? So first we will study the definition of classification. Okay, so here the definition is written. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है, इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, एंड बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप इन अ हिरार्कियल कैटेगरी. हिरार्की मतलब होता है एक अरेंजमेंट वाइज उनको कैटेगराइज करना. Now what are the importance of classification? क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या है? तो क्लासिफिकेशन के कुछ इम्पोर्टेंस हैं, उसके कुछ फ़ायदे हैं. जैसे सबसे पहले तो ये कि हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं. तो सभी को एक साथ में स्टडी कर पाना तो पॉसिबल नहीं होता. क्लासिफिकेशन से उनको स्टडी कर पाना पॉसिबल हो जाता है. सो इट इज़ नॉट possible to study each and every organism individually, but when we classify them into different groups, different classes or families, it become easier to study them, those with respect to their common features, common characters. सेकेंड जो इसका फ़ायदा है वो ये कि स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप, अगर हमने उसको ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया है और हमने पूरे ग्रुप का फीचर पढ़ लिया है, तो जो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप या कैटेगरी या क्लास में आने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होंगे. तो एक ये फ़ायदा होगा.
तो सेकेंड फ़ायदा जो है, स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव्स sufficient information about the essential features of the group. Then it helps in identification of new organism. अगर कोई न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ है, डिस्कवर हुआ है, तो जो प्रीवियसली क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ग्रुप को, उनकी क्लासेस को स्टडी करके हम लोग नए डिस्कवर होने वाले ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलरली ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं या असाइन कर सकते हैं। फिर फोर्थ बेनिफिट है, क्लासिफिकेशन जो है ये हेल्प करता है हमको ये समझने में कि अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है। और एक फ़ायदा है कि वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है इनको हम लोग विदाउट क्लासिफिकेशन तो स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कि इसको हम लोग जो है वो क्लासीफाई नहीं करेंगे तब तक के इनको हम लोग जो है वो इंडिविजुअली सिंगल स्टडी नहीं कर सकते। सो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। Now, next, systems of classification. As I told you in the beginning, in the introductory part, कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है ये बहुत ओल्डर टाइम से डेवलप्ड है, और बहुत ओल्डर टाइम में थियोफ्रास्टस नाम का साइंटिस्ट था या फिलोसफर बोलो, उसने जो है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, यानी कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या हैबिटेट के बेसिस पर उसने जो है अलग अलग ग्रुप में प्लांट्स को, एनिमल्स को जो है वो क्लासिफाई किया था। तो उस टाइम पर प्लांट्स को जो है वो ट्रीज़ में, हर्ब्स में, श्रब्स में इस तरह से क्लासिफाई किया गया था। सो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में तो जो पहला सिस्टम है, द फर्स्ट सिस्टम, इट इज़ कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है, और ये वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब जो ऐसे कैरेक्टर जो ऊपर से नज़र आने वाले कैरेक्टर्स हैं उनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसको जो है फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब जैसे प्लांट्स को क्लासीफाई करना है तो प्लांट्स को ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पर फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्लासीफाई कर दिए थे। एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया ईनेमा और आनेमा में। ईनेमा जो है ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जिनके पास में रेड ब्लड होता है। सो रेड ब्लड वाले जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं ईनेमा में, और आनेमा मीन्स है विदाउट रेड ब्लड। तो एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया ईनेमा और आनेमा में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है इसको कुछ पुराने फिलोसफर जैसे थियोफ्रास्टस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसको जो है बुक के फॉर्म में और लोगों के सामने पब्लिश किया था एरिस्टोटल ने। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू दिस प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग में, फर्दर उनके हैबिटेट की बेसिस पर उनको हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज़ में, ग्रासेस में क्लासीफाई किया गया। एनिमल्स को अनेमा और ईनेमा में क्लासीफाई किया गया। सेकेंड जो है इसके अंदर वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस इज़ द सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये कंसिडर करता है एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को, और यहाँ पे कैरेक्टर्स को जो है वो कंपेरेबल मैनर में स्टडी किया जाता है, और यहाँ पर जो है ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो सिमिलरिटीज़ हैं और डिससिमिलरिटीज़, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, यानी दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और कौन कौन सी डिससिमिलरिटीज़ हैं, इसके बेसिस पर उनको जो है वो अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई करना। दिस इज़ द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, प्लांट्स को इन लोगों ने पर्टिकुलरली जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनको डिफरेंट फैमिलीज़ में, डिफरेंट क्लासेस में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये एग्जांपल है बेंथम एंड हुकर की, जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। तीसरा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करना। सो फाइलोजेनी जो है ये बोला जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, यानी इवोल्यूशन की बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। तो कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से दूसरे ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं उसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, इसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ classification. So phylogenetic system of classification is mainly based on the evolutionary relationship of different organisms. So
इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है एंगलर एंड पेरेंटल क्लासिफिकेशन एंड हटिंगसन क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिनको हायर लेवल पे जा कर के टेक्सोनॉमी के अंदर स्टडी किया जाता है। हमको सिर्फ जो है इसकी कैटेगरीज याद रखना है। कैटेगरीज में हमको ये याद रखना है कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, नेचुरल सिस्टम किसको बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम जो है हमको याद रखना है। ऐसे ही एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, उसको बोला जाता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फेनेटिक जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है ये बेस करता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये नंबर पर बेस करता है, साइटो टेक्सोनॉमी पर बेस करता है, केमो टेक्सोनॉमी पर, क्लेडिस्टिक यानी डिफरेंट ट्री डायग्राम्स के फॉर्म में प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासीफाई करके स्टडी करना, इन सब चीज़ों के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करना, इसको बोलते हैं phonetic classification system. So these are the few systems of classification. Okay, now next we will study the kingdoms system level of classification. It means we will classify different group of organism in different किंगडम। सो किंगडम लेवल पर क्लासिफिकेशन यहाँ पर अभी हमको स्टडी करना है। सो एट द किंगडम लेवल वी विल स्टडी डिफरेंट ग्रुप क्लासिफिकेशन के, हमको जो है वो ग्रुप्स को किंगडम लेवल पर जा कर के स्टडी करना है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मीन्स ऑर्गेनिज्म को या जितने भी डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स थे इनको जो है वो दो किंगडम में क्लासीफाई किया गया सबसे पहले। और ये जो प्रीमिटिव दो किंगडम थे, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्लाइड को। ये जो दो किंगडम थे ये थे प्लांटे और एनिमेलिया। सो दिस वाज द अर्लीस्ट किंगडम लेवल क्लासिफिकेशन और इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1758 में कार्ल लिनियस ने, जिसने बायनोमियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसी ने। सो इसको इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस ने। तो टू किंगडम सिस्टम में क्या था, प्लांटे के अंदर जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई और जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे अलगी जैसे के, ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड थे। और एनिमेलिया के अंदर उस वक्त इंक्लूडेड थे यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सारे के सारे एनिमल। तो इस तरह से टू किंगडम में ऑर्गेनिज्म को बिगिनिंग में क्लासीफाई किया गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो थ्री किंगडम में क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया था अर्नस्ट हैकल ने। मैं साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको इंट्रोड्यूस किया था अर्नस्ट हैकल ने 1866 के टाइम पर। सो अर्नस्ट हैकल ने क्या किया था, प्लांटे और एनिमेलिया तो ऑलरेडी थे ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, और इसमें इसने जो है वो प्रोटिस्टा को भी ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद में आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो है बाद में मोनेरा को ऐड कर दिया गया था, और मोनेरा को ऐड किया था कोपलैंड ने। फिर आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेप्टेड, अभी तक का एक्सेप्ट किया हुआ सिस्टम है। इसको इंट्रोड्यूस किया था RH विटेकर ने 1969 के टाइम पर। तो आगे जो है इसी की डिटेल लिखी हुई है, लाइक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं आगे के पॉइंट्स में। सो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसको लीनियस ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी है और फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी है। थ्री किंगडम सिस्टम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था अर्नस्ट हैकल ने, जिसने प्रोटिस्टा ऐड किया था। फिर उसके बाद फोर्थ किंगडम जो ऐड हुआ था वो था मोनेरा, और मोनेरा को जो है इंट्रोड्यूस किया था कोपलैंड ने। सो कोपलैंड ने जो है वो टर्म मोनेरा इंट्रोड्यूस की थी, और ये था फोर्थ किंगडम जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया था। बाद में फिर 1969 में आया
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसको इंट्रोड्यूस किया था आर.एच. विटेकर ने। सो ये था थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर के। तो अभी जो एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है आर.एच. विटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमको इस चैप्टर में आर.एच. विटेकर के ही किंगडम लेवल सिस्टम को, क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो करना है। सो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो कुछ कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट चैप्टर में दिया था कि इसके अंदर जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर क्लासिफाइड इन फाइव डिफरेंट किंगडम। इनको जो है वो पांच बड़े बड़े ग्रुप में, पांच बड़े बड़े किंगडम में क्लासीफाई किया गया है। अब ये जो पांच किंगडम है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। तो अब इनको जो क्लासीफाई किया गया है वो सर्टेन कैरेक्टर्स की बेसिस पर है, कुछ क्राइटेरिया की बेसिस पर है। तो यहाँ पर जो है उसके क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। सो इसमें सबसे पहले है सेल टाइप। मोनेरा जो होते हैं ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, मीन्स दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया ये सारे के सारे जो है वो यूकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। फिर है सेल वॉल। सेल वॉल मोनेरन्स के अंदर जो है ये एक्चुअली नॉन सेलुलर पॉलीसेक्राइड और कुछ अमाइनो एसिड्स की बनी हुई रहती है। प्रोटिस्टा के अंदर जो है कुछ के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट रहती है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है तो कुछ एक के अंदर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट रह सकती है, मैक्सिमली जो है वो एब्सेंट रहती है। फंजाई में जो है वो फंगल काइटिन की बनी हुई रहती है या कि फिर जो है विदाउट सेलुलोज है। प्लांट के अंदर सेलुलोज की बनी हुई है और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा में एब्सेंट है क्योंकि ये अकेले प्रोकैरियोट है और बाकी सबके अंदर प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों जो है वो यूनिसेलुलर है, तो इसके लिए इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनिसेलुलर या सेलुलर है। और बाकी आगे अगर हम देखेंगे फंजाई में तो मल्टी सेलुलर है। फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू लेवल है। प्लांटे में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है, ऑर्गन लेवल तक है। और एनिमेलिया के अंदर टिश्यू, फिर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें तो मोनेरा में हमको सभी टाइप का मोड देखने को मिलेगा। कुछ केमोसिंथेटिक होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफ होते हैं, कुछ पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक होते हैं। प्रोटिस्टेंस जो है दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड सम आर हेट्रोट्रॉफिक। फंजाई जो होते हैं टोटली हेट्रोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं। और प्लांटे जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एनिमल्स जो हैं ये टोटली होलोजोइक होते हैं, सम एनिमल्स आर सेप्रोफाइटिक। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एनिमेलिया के अंदर ये टोटली कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक और होलोजोइक, टोटली एनिमल लाइक। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, 5 क्राइटेरिया, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनकी बेसिस पर जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जो है आ जाते हैं हमारे फर्स्ट किंगडम पर, किंगडम मोनेरा। नाउ किंगडम मोनेरा, एज इट इज़ सेड इन अर्लियर स्लाइड दैट किंगडम मोनेरा जो है इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स। इसके अंदर जो है वो प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियर बाउंड्री जो है वो डिफाइन नहीं होती, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। और माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया जितने हैं सभी, एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले, ये सब किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो हमको सारे के सारे जो किंगडम हैं वो किस तरह से स्टडी करना है, हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टडी करना है, उसके सब ग्रुप्स को भी स्टडी करना है। सब ग्रुप्स मतलब उसके अंडर में आने वाले ग्रुप्स को स्टडी करना है विथ रिस्पेक्ट टू देयर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के साथ में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें पहले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हुए हैं। तो किंगडम मोनेरा जितने भी ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, और ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो है माने जाते हैं। सो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आने वाले जो हैं।
नेक्स्ट जो है सेल्स जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, तो इसके लिए माइक्रोस्कोपिक है, विदाउट माइक्रोस्कोप इसको हम लोग नहीं देख सकते, और सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होता, मींस बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है, नेकेड होता है इनका डीएनए। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं और उनकी जो मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल यहाँ पर एब्सेंट रहते हैं। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल है और जनरली जो है ये होती है फिजन से, मल्टीपल फिजन हो सकता है या बाइनरी फिजन हो सकता है। फ्लैजिला जो है ये प्रेजेंट रहता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, तो लोकोमोशन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए इनके अंदर फ्लैजिला जो है प्रेजेंट रहता है। सिंगल फ्लैजिला हो सकता है, डबल फ्लैजिला हो सकता है, या कि पूरे सेल के सराउंडिंग में फ्लैजिला हो सकता है, जिसको पेरीट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आ जाते हैं। फिर इसकी कॉमन एग्जांपल्स में ब्लू ग्रीन अलगी हैं, बैक्टीरिया जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू टाइप के बैक्टीरिया हैं वो आ जाएंगे, एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं ये सारे आ जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। और बैक्टीरिया जो होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हर तरह के क्लाइमेट में, हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। अब इसके हमको जो है किंगडम मोनेरा में आने वाले कुछ जो मेजर ग्रुप्स हैं या इसकी जो क्लासेस हैं वो हमको यहाँ पर अभी नेक्स्ट स्टडी करना है। ओके, तो पहले तो शेप देख लेते हैं बैक्टीरिया का, कि डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं उनके शेप कैसे रहते हैं। नो बैक्टीरिया जो है इनको शेप की बेसिस पर 4 मेन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। कॉक्साई मीन्स स्फेरिकल, अगर 2 स्फीयर एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो उसको डिप्लोकॉक्साई या डिप्लोकोकस बोलेंगे। बेसिलाए सेकंड है, या इसको हम लोग रॉड शेप बोलते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है स्पाइरल शेप, स्पाइरिला, तो दोनों तरफ जो है वो फ्लैजिला देखने को मिल रहा है। एम्फीट्राइकस स्पाइरिला भी बोलते हैं इनको। और फिर चौथी कैटेगरी के जो बैक्टीरिया हैं दे आर कॉल्ड विब्रियो बैक्टीरिया। इनका जो शेप होता है ये कॉमा शेप होता है, जैसे विब्रियो कॉलेरा आपने स्टडी किया होगा हेल्थ एंड डिजीज़ के पार्ट में। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। देन अब हमको पढ़ना है मोनेरा के डिफरेंट ग्रुप्स को। तो मोनेरा में आने वाले जो अलग अलग ग्रुप हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे, और इसमें जो ग्रुप आते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एंशियंट या ओल्डर, और बैक्टीरिया तो हम सब जानते ही हैं, बैक्टीरिया दे आर द मेंबर्स ऑफ मोनेरा। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं या मोस्ट प्रिमिटिव टाइप के मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं। और एक ख़ास बात इनकी जो है ये रहते हैं हार्श हैबिटेट में, यानी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत हार्डली सर्वाइव कर पाते हैं। तो हार्श इन्वायरमेंट में, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में हो सकता है, बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग में हो सकते हैं, या कि एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग हार्शी इन्वायरमेंट में, हार्श इन्वायरमेंट में ये रहते हैं। तो इसमें जो है अगर एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है हेलोफाइल। तो हेलोफाइल मीनिंग याद रखना है, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं दे आर कॉल्ड एज द हेलोफाइल। जैसे हेलोबैक्टीरियम है, हेलोकोकस है, ये सब इसमें आ जाते हैं। इनके सेल के अंदर जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बहुत हाई होता है, और ज़्यादा करके जो है हेलोफाइल ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर सैलिनिटी और लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर सेकेंड नंबर पे इसमें आ जाते हैं थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल जो होते हैं ये हॉट सल्फ़र स्प्रिंग्स के अंदर रहते हैं, और ये जो होते हैं ये या तो फैकल्टेटिव और या कि फिर ऑब्लिगेट एनेरोब होते हैं। मतलब एनेरोब होते हैं, एरोब नहीं हो सकते हैं। एनेरोब मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो होते हैं, मीन्स या तो ऑलवेज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो होंगे और या कि फिर फैकल्टेटिव होंगे, मीन्स कभी ऑक्सीजन जब मिलेगा तो थोड़ा ऑक्सीजन यूज़ भी कर लेंगे। फिर मार्शी प्लेसेस पर रहने वाले या एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहने वाले जो होते हैं दे आर कॉल्ड मीथेनोजन्स। तो मीथेनोजन्स में जैसे मीथेनोबैक्टीरियम है, मीथेनोकोकस है, गोबर गैस बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। रूमिनेंट एनिमल के इंटेस्टाइन में या गट में भी ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं।
सो आर्कीबैक्टीरिया जो हैं दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल रहती है ये स्पेशल टाइप की रहती है। सो स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, जो कि इनको इनेबल करता है हार्श इन्वायरमेंट में रहने के लिए। मिथेनोजेंस जो होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज आई टोल्ड यू इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जैसे काव हैं, बफेलो हैं, शीप हैं, गोट हैं, इनके गट में, इनके इंटेस्टाइन में रहते हैं और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन या बायोगैस बनाने के लिए फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। नेक्स्ट जो है ग्रुप वो है यू बैक्टीरिया का ग्रुप। सो जो यू बैक्टीरिया का ग्रुप है, अब ये यू बैक्टीरिया में जो है इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है। यू बैक्टीरिया में जो है ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या कि हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। फिर ऑटोट्रॉफिक में दो टाइप के ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या कि केमोसिंथेटिक। फोटो सिंथेसिस करने वाले या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। केमोसिंथेटिक वो होते हैं जो सनलाइट को यूज़ नहीं करते, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो एग्जांपल्स यहाँ पर जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में लिखी हुई है। ब्लू ग्रीन अलगी आ जाएंगे, नोस्टॉक है, एनाबिना है और केमोसिंथेटिक में जो है वेस्टिमेंटिफेरा है और कैलिप्टोजेना, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें आ जाते हैं। सो इनके फीचर्स यहाँ पर अभी आपको स्टडी करना है कि इनके कौन कौन से जनरल फीचर्स हैं। सो फ्यू जनरल फीचर्स जो इनके हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। वेट, सो यू बैक्टीरिया को हम लोग जो है वो ट्रू बैक्टीरिया मानते हैं। मींस बैक्टीरिया के जो बेसिक फीचर्स हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सो दे कंटेन रिजिड सेल वॉल, अगर मोटाइल हैं तो उनके अंदर मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। साइनोबैक्टीरिया भी जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन अलगी भी बोला जाता है। ये यूजुअली जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, मींस ग्राम स्टेन से ये पर्पल स्टेन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्लोरोफिल ए और कैरोटिनोइड्स और इस तरह के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। दे आर द फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं या कि कुछ मरीन और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर जो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है वो होता है इनके अंदर एक सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और हेट्रोसिस्ट जो होता है इट इज़ द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो है वो सेल होता है, उसके अंदर एंजाइम नाइट्रोजिनेस प्रेजेंट रहता है। सो नोस्टॉक है, एनाबिना है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, सल्फेट्स हैं इनको, और ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में। हेट्रोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और ये जो होते हैं वो डिकम्पोज़र होते हैं, मींस डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं। और साथ ही जो है कुछ हेल्पफुल टाइप के बैक्टीरिया हैं, जैसे कर्डलिंग करने, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाले, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाले, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में रहते हैं वो सब आ जाएंगे इसमें। कुछ पैथोजेनिक हैं जिनको स्टडी किया जाता है मेडिकल पर्पस में, जैसे टाइफॉइड है, कॉलेरा है, ये सब डिजीज़ेस कॉज करने वाले, टिटानस कॉज करने वाला क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है। सिट्रस कैंकर डिजीज़ जो है प्लांट के अंदर होती है, ये सब डिजीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी में आ जाते हैं। ओके, थर्ड जो ग्रुप है अभी इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक के आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। अब जो थर्ड ग्रुप है वो होता है माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा जो है,
माइकोप्लाज्मा जो होते हैं दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट। सिंपलेस्ट फ्री लिविंग भी होते हैं और स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको ही जो है वो PPLO बोला जाता है, मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मींस एनिमल के अंदर न्यूमोनिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स। सेल वॉल जो है वो इनको टोटली एब्सेंट होती है और दे आर कम्प्लीटली अनएरोबिक, यानी टोटली जो है वो अनएरोबिक है। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये सर्वाइव करते हैं। सो दे रिमेंबर दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। मीन्स 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर जो है इनकी साइज़ होती है। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में डिफरेंट डिजीजेस कॉज करने वाले हैं। इनका डायग्राम भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सो डायग्राम जो है वो तो ऐसे NCERT में नहीं दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पर रेफरेंस के लिए डायग्राम लगा दिया है। तो ये होते हैं माइकोप्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट हमको जो स्टडी करना है, कुछ और ग्रुप हैं जिनको जो है वो एक्टिनोमाइसिटीज़ भी कहा जाता है। तो एक्टिनोमाइसिटीज़ अपने NCERT में नहीं है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर उसको जो है वो इंक्लूड नहीं किया है। बट एक्टिनोमाइसिटीज़ भी होते हैं जो कि समझो फंगी लाइक होते हैं और जो डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं। सो एक्टिनोमाइसिटीज़ डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होने वाले बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। नेक्स्ट किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा, अर्नस्ट हैकेल ने जो है इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, किंगडम प्रोटिस्टा के टर्म को। सो किंगडम प्रोटिस्टा, दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर बट दे आर यूकैरियोट। तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, यूकैरियोटिक, ये पूरा ग्रुप इसमें आ जाएगा। अभी इसमें ज़्यादा करके जो है वो एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी में रहने वाले होते हैं, और इनको जो है वो प्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन बोलते हैं ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो वाटर के करंट के साथ में तैरते हैं, मतलब जिस तरह पानी तैर के जाता है, पानी बह के जाता है, उनके साथ में तैरते हैं। तो इसमें ज़्यादा करके जो है वो प्लैंकटन्स होते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो मैक्सिमली ज़्यादा करके जो है फोटोसिंथेटिक होता है। कुछ इसमें हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म हमको मिलेंगे। प्रोटिस्टा जो है ये बहुत अनस्टेबल किंगडम माना जाता है, तो इसमें हर अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन रखने वाले हमको मिल जाएंगे। फोटोसिंथेटिक भी मिल जाएंगे, सेप्रोफाइटिक भी आ जाएंगे, पैरासाइटिक या कम्प्लीटली एनिमल लाइक होलोजोइक आ जाएंगे। फ्लैजिला जो होता है वो इंटरनली 11 प्रोटीन के ट्यूब्यूल्स या स्ट्रैंड्स से बना हुआ होता है, और इसका जो अरेंजमेंट होता है ये 9+2 का अरेंजमेंट होता है। मतलब 9 जो है वो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स होते हैं और 2 जो है वो इनर ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं। और इसका जो मेन कंपोनेंट है प्रोटीन का फ्लैजिला का, उसको बोला जाता है ट्यूबुलिन। सेल वॉल जो है ये या तो सेलुलोज की हो सकती है या कि फिर जो है वो सिलिका के पार्टिकल्स के और कुछ प्रोटीन के फाइबर्स के साथ। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, ऑन कॉन्ट्रेरी विथ द मोनेरन्स। तो मोनेरा के अंदर हमको जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते हैं, जबकि इस ग्रुप के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर हमको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं। सो प्रोटिस्टा जो है इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मोड है असेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी है। तो जो सेक्सुअल मोड है वो बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूज़न ऑफ गैमेट एंड दे फॉर्म द जाइगोट, फिर जाइगोट जो है वो आगे ग्रो होता है। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन हमको प्रोटिस्टेंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी विल स्टडी द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं ये हमको स्टडी करना है कि प्रोटिस्टा में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। तो प्रोटिस्टा जो होता है इसको, प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसको प्रोकैरियोट्स के बीच में, मतलब मोनेरन्स के बीच में और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के बीच में जो है कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। और यही रीज़न है कि प्रोटिस्टा में हमको जो है वो बहुत सारे अलग अलग फीचर रखने वाले ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। कुछ प्रोटिस्टा जो है वो प्लांट लाइक होते हैं,
कुछ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा भी होते हैं और कुछ जो है वो फंगी लाइक प्रोटिस्टन्स भी होते हैं। सो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा में हैं, सबसे पहले क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स जो हैं इनके फीचर्स पहले हम लोग देखते हैं। सो क्राइसोफाइट्स जो हैं इसमें क्या क्या आ जाएगा। ओके, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं दे इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन अलगी, गोल्डन अलगी या डेस्मिड्स भी इनको बोलते हैं। सो इसमें ये दो ग्रुप आते हैं, दो सब ग्रुप आते हैं, डायटम्स एंड गोल्डन अलगी। और फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक हैं, देखने में बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। और पैसिवली फ्लोट होते हैं, जैसा मैंने भी बताया कि पैसिवली फ्लोट होने वाले यानी वाटर के करंट के साथ में फ्लोट होने वाले, दे आर कॉल्ड प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम जो है ये ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो दो ओवरलैपिंग शेल्स की बनी हुई रहती है। आगे इसका डायग्राम भी मैंने जो है वो प्लेस किया है, जो इस तरह से फिट होती है इनकी सेल वॉल के जो दो प्लेट्स होते हैं कि जैसे सोप बॉक्स होता है अपना, वो सोप बॉक्स के दो लिड्स जो एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं, उसी तरह से इनकी ओवरलैपिंग सेल वॉल होती है। तो जो वॉल्स जो है वो सिलिका और या के फिर जो है सिलिका और या फिर कुछ अदर पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है। तो इसीलिए इनकी जो सेल वॉल है उसको इनडिस्ट्रक्टिबल माना जाता है। और जब ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म डेथ हो जाता है तो फिर उससे ऑर्गेनिज्म की भी डेथ मान ली जाती है। बट सेल वॉल का जो रेमिनेंट होता है ये धीरे धीरे ओशन के या जो जो भी मरीन एक्वेटिक बॉडी में ये रह रहे हैं उसके बॉटम में जाकर के जमा हो जाता है और वहाँ पे अर्थ के साथ में जाकर के ये मिक्स हो जाता है और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक का वो वहाँ पर जमा होता रहता है और उसी से फॉर्म होता है डायटोमेशियस अर्थ। तो डायटोमेशियस जो अर्थ होता है वो ग्रिटी नेचर का होता है, ग्रिटी मतलब वो बहुत पोरस नेचर का होता है। तो उसको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप के लिए। डायटम्स जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन, ओशन के सबसे मेन प्रोड्यूसर्स इनको माना जाता है। सो प्रोटिस्टा में ये पहला ग्रुप हो गया क्राइसोफाइटा का। फिर नेक्स्ट हम लोग जो है वो आते हैं, ये कुछ क्राइसोफाइट्स के डायग्राम हैं, आप इनको यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। क्राइसोफाइट्स के जो डायग्राम है, गोल्डन अलगी इनको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये येलोइश कलर के या लाइट या कहीं पर जो है वो डार्क गोल्डन कलर के नज़र आते हैं। तो नाम इनके इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमको, बट फिर भी डायग्राम आप यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट जो ग्रुप है इट इज़ द डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट ये इनका अगला ग्रुप है। सो डायनोफ्लैजिलेट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डाई मीन्स होता है टू, सो दे पजेस टू फ्लैजिला। मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मरीन होते हैं और फोटो सिंथेटिक होते हैं। देखने में जो है वो येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू अलग अलग तरह के होते हैं। मेन पिगमेंट जैसा होगा वैसा उनका कलर हमको नज़र आएगा। सेल वॉल जो होती है वो स्टिफ होती है, सेलुलोज की बनी हुई, सेलुलोज के प्लेट्स की बनी हुई सेल वॉल होती है इनके अंदर। और मोस्ट ऑफ देम दे पजेस टू फ्लैजिला, इनके पास में जो है वो दो फ्लैजिला रहते हैं, तो इसीलिए इनका नाम जो है वो डायनोफ्लैजिलेट बोला गया है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फायर अलगी, ये भी एक नाम है, इनका अल्टरनेटिव नेम है, इनको ही फायर अलगी भी बोला जाता है। रेडिश कलर के अपीयर होते हैं तो इसके लिए इनको फायर अलगी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं इसमें कॉमन एग्जांपल है गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम, ये दो कॉमन एग्जांपल है इसमें। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आते हैं, सिराटियम है, नॉक्टिलुका है, ये सब जो है वो बायोलुमिनेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। और अगर इनको न्यूट्रिएंट मिल जाता है ओशन के कोस्ट पर या जहाँ पर भी ये हैं और न्यूट्रिएंट रिच वाटर जब इनको मिल जाता है
तो ये बहुत तेज़ स्प्रेड होते हैं और बहुत तेज़ी से डिवाइड होकर के जो है ओशन की सरफेस को पूरा रेड बना देते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड, ये टर्म याद रखना है और उसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है। गोनियोलेक्स है, जिम्नोडीनियम है और सिराटियम है, नॉक्टिलुका है, ये सब कॉज करते हैं। तो रेड टाइड में क्या इफ़ेक्ट होता है? रेड टाइड जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पर्टिकुलरली जो गोनियोलेक्स है, ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है और ये जो टॉक्सिन होता है ये जो दूसरे मरीन एनिमल्स हैं जैसे फिशेज़ हैं और जो क्रस्टेशियंस हैं उनको जो है ये किल कर देता है। तो ये इफ़ेक्ट होता है और ये जो फिनोमिनन होता है, दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड एज द रेड टाइड, इसको बोला जाता है रेड टाइड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम। तो ये डायग्राम के अंदर दो फ्लैजिला दिख रहा है। एक जो फ्लैजिला है वो वर्टिकल फ्लैजिला होता है। ओके, ये वाला जो फ्लैजिला आप देख रहे हैं ये वाला, दिस इज़ द वर्टिकल फ्लैजिला। और एक फ्लैजिला जो होता है, ये दोनों प्लेट्स हैं, ये ऊपर के दो प्लेट्स हैं, एक ऊपर का है और एक नीचे का प्लेट है। तो ऊपर वाली प्लेट को जो है वो एपीथेका और नीचे वाली प्लेट को हाइपोथेका, लिड लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों सोप बॉक्स की तरह फिट हो रहे हैं। तो एक फ्लैजिला जो है ये दोनों प्लेट के यहाँ से निकल रहा है, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल फ्लैजिलम। और एक जो है वो लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला है, या इसको ट्रांसवर्स फ्लैजिलम भी बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वाला जो फ्लैजिलम होता है ये फीडिंग में हेल्प करता है और लॉन्जिट्यूडनल वाला जो होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप है इसमें यूग्लिनॉइड्स। ना यूग्लिनॉइड्स का जो ग्रुप है, मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो कि रुके हुए या स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं। सेल वॉल इनके पास में नहीं होती है और सेल वॉल की जगह पर इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो पेलिकल, एक तरह की प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोला जाता है पेलिकल। तो इसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल होती है, पूरी तरह से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है इनके पास भी, एक जो है वो शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है यूग्लिनॉइड्स के पास में। फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब जब तक के सनलाइट मिलता है तब तक का जो है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और जब सनलाइट नहीं मिलती तो फिर जो है ये एनिमल्स की तरह फीडिंग करते हैं, मींस हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं बाय प्रीडेटिंग ऑन सम अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। पिगमेंट्स इनके अंदर जो होते हैं डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की तरह ही पिगमेंट होते हैं, जैसे अपने हायर प्लांट्स के अंदर पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड्स हैं, जेंथोफिल है, इस टाइप के पिगमेंट्स इनके पास भी प्रेजेंट रहते हैं। कॉमन एग्जांपल इसमें है यूग्लिना और उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जैसे फैकस है और यूट्रिप्शिया है, फिर ट्रैकिलोमोनास है और पिरानिमा है, ये सब है। इसमें यूग्लिना एग्जाम्पल याद रखना, उसकी बेस पर इनको यूग्लिनॉइड्स बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर जो है वो बाइनरी फिजन की वजह से होता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना का डायग्राम आप देख लीजिए, ये डिटेल्ड इंटरनल डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इसके पास में जो है वो फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। तो ये जो फोटो रिसेप्टर ऑर्गेनेल होता है इसकी बेस पर, इसकी वजह से ये लाइट को सेंस कर पाता है और जहाँ पर लाइट का सोर्स आता है वहाँ पर जा कर के ये जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ ग्रुप जो है इट इज़ द स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंगी लाइक प्रोटिस्टन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है फंगी लाइक प्रोटिस्टा। नेचर जो है इनको नाम जो दिया गया है स्लाइम मोल्ड, ये उनके सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर है। नॉर्मली जो है ये ग्रो होते हैं डिकेइंग ट्विक्स के ऊपर, जहाँ जैसे फंगस जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं वैसे ही ये भी ग्रो हो जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ करके अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं।
जब सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये बहुत तेज़ डिवाइड हो जाते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं उनका जो एग्रीगेशन होता है उस कॉलोनी को बोला जाता है प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट को भी प्लाज्मोडियम बोलते हैं और इनके एग्रीगेशन को भी प्लाज्मोडियम बोलते हैं। लेकिन वो जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया वाला, वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का नाम है। कभी भी आप देखेंगे तो वो एक जीनस है तो उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल P लिखा हुआ रहता है, जबकि ये प्लाज्मोडियम जो है दीज आर द एग्रीगेशन, ये कॉलोनी का नाम है, तो इसको हम लोग स्मॉल p से लिखते हैं। और ये जो प्लाज्मोडिया हैं फिर बाद में ये पूरे वाटर के ऊपर बहुत दूर तक का फैल सकते हैं। फिर अनफेवरेबल कंडीशन में ये होता है कि जो प्लाज्मोडिया होते हैं, मतलब इनके जो कॉलोनीज़ होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म करते हैं फंगस की तरह, और फिर उसी के टिप के ऊपर जो है स्पोर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द फीचर्स जो इस ग्रुप में हैं वो फंगी लाइक फीचर्स हैं, फंगस वाले फीचर्स से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए इनको जो है वो फंगी लाइक प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। जो इनके स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट के थ्रू, मतलब हवा से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं। दीज आर द फ्यू स्लाइम मोल्ड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ डायग्राम हैं स्लाइम मोल्ड्स के। नेक्स्ट पांचवा जो ग्रुप है वो भी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो वो है प्रोटोजोअन्स का। जो प्रोटोजोआ होते हैं, ये प्रोटोजोअन्स जो हैं यहाँ पर they are further divided into amoeboid protozoan, then flagellated protozoan, ciliated protozoan and sporozoan. तो प्रोटोजोआ मीन्स एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोआ मतलब होता है एनिमल। सो दीज आर एक्चुअली द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, मतलब इनके अंदर जो फीचर्स हैं वो बहुत मिलते जुलते फीचर्स हैं एनिमल जैसे। तो इनके एक एक ग्रुप को अभी हमको इनकी एक एक सब क्लास को भी हमको स्टडी करना है। ओके, नाउ प्रोटोजोआ। सो यहाँ पर जो फीचर्स हैं प्रोटोजोअन्स में, सारे के सारे जो प्रोटोजोअन्स हैं, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि ये एनिमल लाइक हैं तो ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रीडेट करते हैं या के पैरासाइट रहते हैं। सो दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव्स माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स का जो इवोल्यूशन है वो प्रोटोजोअन्स से स्टार्ट हुआ है। इसके जो 4 ग्रुप हैं जो अभी हमने फ्लो चार्ट में देखे थे प्रीवियस स्लाइड में, उनको हमको विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल एंड फ्यू कॉमन फीचर्स स्टडी करना है। तो इनको लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन, यानी अमीबा लाइक प्रोटोजोन जो स्यूडोपोडिया से मूव होते हैं। तो इसके अंदर कॉमन एग्जांपल जो है अमीबा है, अमीबा प्रोटियस। कुछ मरीन फॉर्म्स अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिलिका के शेल प्रेजेंट रहते हैं और इनको जो है काउंट किया जाता है फोरामिनीफेरा में। दे आर कॉल्ड फोरामिनीफेरा। सो दे आर कॉल्ड फोरामिनीफेरा, जिनके पास में सिलिका का इनका जो है वो स्केलेटन होता है। नेक्स्ट जो है वो है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिनके पास जो फ्लैजिला एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। कॉमन एग्जांपल है स्लीपिंग सिकनेस कॉज करने वाला एक ऑर्गेनिज्म ट्रिपेनोजोमा। पूरा नाम जो है वो है ट्रिपेनोजोमा गैम्बियंस या ट्रिपेनोजोमा ब्रूसी गैम्बियंस भी इसका कंप्लीट नेम है। तो ये इसमें आ जाता है जो कि फ्लैजिला की मदद से मूव करता है, या इनको जो है वो जू फ्लैजिलेट भी बोला जाता है। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज जू फ्लैजिलेट्स, और या के इन्हीं को जो है वो मेस्टिगोफोरा भी बोलते हैं, मेस्टिगोफोरा। तो इसके अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो एक एग्जांपल ये दी हुई है ट्रिपेनोजोमा। ट्रिपेनोजोमा के अलावा और जो एग्जांपल है वो है लेशमानिया, जो कि लीवर का इन्फेक्शन कॉज करता है और इसको जो है वो काला अज़ार भी कहा जाता है। ट्रिपेनोजोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और ये ट्रांसमिट होता है एक तरह की फ्लाई से, जिसको सेसे फ्लाई कहते हैं। फिर है सिलिएटेड प्रोटोजोन जो सिलिया की मदद से मूव होते हैं।
तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में आ जाते हैं पैरामीशियम। इनके पास में जो है एक कैविटी होती है जहाँ से ये फूड का इनटेक करते हैं, जो बाहर खुलती है उसको गुलेट बोलते हैं। स्पोरोजोअन जो स्पोर लाइक होते हैं, इसमें सबसे कॉमन जो है वो है मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम। तो ये जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, दे लिव इनसाइड द आरबीसीज ऑफ मैमल्स। सो ये जो है प्रोटोजोअन्स के कुछ एनिमल्स के डायग्राम यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। ट्रिपेनोजोमा ब्रूसिगैम्बियन का डायग्राम है, गोनियोलैक्स है, अमीबा प्रोटियस है, इसके अलावा वर्टिसेला है और टेट्राहाइमेना है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट जो किंगडम है इट इज़ द किंगडम फंजाई। सो किंगडम फंजाई जो है ये अपना नेक्स्ट किंगडम है। नो किंगडम फंजाई जो है ये हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है और नॉन क्लोरोफिलस या अक्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स हैं। स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर बनाते हैं, नॉन वेसिकुलर्स हैं और यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स तो सभी हैं मोनेरा को छोड़ करके, बाकी मोनेरा के बाद में जितने भी आते हैं वो सभी यूकैरियोट कैटेगरी में ही आ जाएंगे। और कॉमन इसके अंदर जो है मशरूम्स आ जाते हैं, जिनको एज अ फूड भी जो है वो यूज़ किया जाता है, और या के फिर कुछ टोड स्टूल्स आ जाते हैं। टोड स्टूल्स मतलब कि जो पॉइजनस टाइप के फंगस रहते हैं, इनको डाइट के तौर पर या फूड के तौर पर यूज़ नहीं किया जाता। देन वाइट स्पॉट जो हमको देखने को मिलता है मस्टर्ड के लीव्स कर, यानी कि जो मस्टर्ड है, सरसों के जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर वाइट स्पॉट्स जो देखने को मिलते हैं वो पैरासाइटिक फंगस की वजह से होते हैं। मींस ये बताने के लिए बताया हुआ है कि फंगस जो है वो पैरासाइटिक होते हैं और प्लांट्स के अंदर डिजीज़ेस भी कॉज करते हैं। इवन इन एनिमल्स दे कॉज सम डिजीज़ेस। कुछ जो दूसरे फंजाई हैं वो एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट के अंदर, जैसे कि वीट रस्ट डिजीज़ है, पुसीनिया करके जो है डिजीज़ होती है, ये सब वीट वगैरह के अंदर पाई जाती है। इस ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे पेनिसिलिन ऑप्टेन होता है, पेनिसिलियम ऑप्टेन होता है पेनिसिलिन से। पेनिसिलियम जो है एक तरह का एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन से निकालते हैं। पेनिसिलियम क्राइसोजिनम या पेनिसिलियम नोटेटम से ये निकाला जाता है। तो इसकी डिस्कवरी भी जो है वो एक चैप्टर में हमने स्टडी की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली। फंगस की जो सेल वॉल होती है ये या तो सेलुलोज की बनी हुई रहती है और या कि फिर जो है काइटिन की। पर यहाँ जो सेलुलोज होता है ये थोड़ा अलग टाइप का सेलुलोज होता है प्लांट से, इसको जो है वो फंगल सेलुलोज बोला जाता है। रिजर्व फूड जो होता है ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक और यहाँ के कुछ जो है वो सिम्बायोटिक होते हैं। जैसे लाइकेंस हमने स्टडी किया है, तो लाइकेंस जो है ये सिम्बायोटिक फंगस, सिम्बायोटिक इसके साथ में फंगस जो है वो अलगी के साथ में सिम्बायोटिक होती है। हमको आगे इसी चैप्टर में लाइकेंस को जो है वो थोड़ा शॉर्ट में स्टडी भी करना है। रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव है, असेक्सुअल है और सेक्सुअल है। वेजिटेटिव जो है ये 2 मेथड से है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन या के बर्डिंग। असेक्सुअल कोनिडिया फॉर्म होने से होता है, चेन के फॉर्म में या जू स्पोर बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये अलग अलग टाइप के गैमेट्स से हैं, जैसे इसमें ओ स्पोर्स हो सकते हैं, स्को स्पोर्स हो सकते हैं या के बेसिडियो स्पोर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमको जो है वो फंगस की अलग अलग जो है वो क्लासेस को स्टडी करना है। तो पहले जो है उसकी लाइफ साइकिल को यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्राइब किया गया है कि इसकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है उसके 3 इवेंट्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्लाज्मोगेमी, जहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो गैमेट दोनों फ्यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद में कैरियोगेमी, जहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है मियोसिस, जहाँ पर जाइगोट जो है वो मियोसिस से डिवाइड होकर के स्पोर्स बनाता है। फिर हर एक स्पोर जो है वो एक न्यू फंगल माइसीलियम बनाता है। कुछ फंगस के अंदर जैसे बेसिडियो माइसिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि डायरेक्ट जैसे ही जो है कैरियोगेमी होता है वैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट नहीं होता जाइगोट में। उसमें कुछ देर के लिए जो है एक फ़ेज़ आती है जिसको बोलते हैं डाई कैरियो फेज़। तो यहाँ पर साइड में जो है इसका लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है। तो इस लाइफ साइकिल में हम लोग देख सकते हैं
कि ये जो है वो फंगल माइसीलियम है। अब ये फंगल माइसीलियम जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊपर की तरफ है, माइटोसिस होकर के डायरेक्ट स्पोर बनते हैं और वो इधर से, और फिर ये डायरेक्ट जर्मिनेट होकर के फंगल माइसीलिया। लेकिन सेक्सुअल साइकिल जो है इसका किस तरह से होता है, पहले जो है प्लाज्मोगेमी है, हैप्लॉइड सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं दो अलग अलग माइसीलिया के, और उसके बाद में फिर जो है वो एक हेट्रोकैरियोटिक स्टेज आती है, फिर कैरियोगेमी है, फिर जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट के अंदर मियोसिस है, मतलब यहाँ पे हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल है, और फिर उसके बाद में हर एक स्पोर से एक पूरा का पूरा फंगल माइसीलियम, मतलब एक फंगल बॉडी डेवलप होती है। तो सेक्सुअल साइकिल के जो है कुछ स्टेजेस यहाँ पर बताए हुए हैं कि जब फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। तो सो ये कुछ इवेंट्स हैं व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। दो हैप्लॉइड जो हाइफे होते हैं कॉम्पेटिबल मेटिंग टाइप के, वो फ्यूज़ होते हैं। उसके बाद में फिर जो है इन सम फंजाई फ्यूज़न ऑफ टू हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट्स इन अ डिप्लॉइड सेल। और कुछ के अंदर, मतलब कुछ के अंदर तो डायरेक्ट डिप्लॉइड सेल बन जाता है जाइगोट, और कुछ के अंदर जो है एक इंटरमीडिएट इंटरवीनिंग स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डायकैरियोटिक स्टेज या डायकैरियो फेज, जहाँ पर जो है दो न्यूक्लियाई एक साथ में प्रेजेंट रहते हैं फ्यूज़न से पहले, और बाद में फिर जो है वो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते हैं कुछ टाइम के बाद, और फिर डिप्लॉइड होकर के फिर उसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर देखो, द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। डिफरेंट क्लासेस हैं फंजाई के, हमको पढ़ना है। एस्कोमाइसिटीज़ है, फाइकोमाइसिटीज़, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो इसमें हम लोग जो है फाइकोमाइसिटीज़ से अभी पहले देखते हैं। सो देयर आर सम फीचर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज़, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अलगल फंजाई। फाइको का मतलब होता है अलगी और माइको का मतलब होता है फंजाई, तो दे आर कॉल्ड एज द अलगल फंजाई। एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट रहते हैं, या कि डिकेइंग वुड के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, या कि फिर मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पर प्रेजेंट रहते हैं। माइसीलिया जो होता है वो सेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है। सेप्टेट और सिनोसाइटिक का मतलब ये होता है, सपोज़ कर लो कि ये जो है एक फंगस की बॉडी है, तो फंगस की बॉडी को माइसीलिया बोलते हैं। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होते हैं, दीज हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस दे आर कॉल्ड हाइफे। अब ये हाइफे जो है वो अगर इस तरह से पार्टीशन में डिवाइडेड है, ये ऐसे इसके अंदर अगर पार्टीशंस हैं, तो इसको बोलेंगे सेप्टेट हाइफे। सेप्टा मतलब पार्टीशन, और सेप्टेट हाइफे जो रहेंगे, हर एक सेप्टा के अंदर जो है एक न्यूक्लियस रहेगा, मतलब यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड रहेगा। और अगर ये हाइफे इस तरह के हैं कि जहाँ पर जो है ये पार्टीशन में डिवाइडेड नहीं है, सपोज़ ये फ्रूटिंग बॉडी है और ये हाइफा है, और ये हाइफा जो है ये डिवाइडेड नहीं है, ये कंटिन्यू है, तो यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा ये बहुत सारे। तो ऐसे हाइफे जो होते हैं, दीज हाइफे दे आर कॉल्ड एज सीनोसाइटिक हाइफे, इनको बोला जाता है सीनोसाइटिक हाइफे। तो यहाँ पर जो है जो हाइफे होते हैं, दीज आर सीनोसाइटिक हाइफे आसेप्टेट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ज़ूस्पोर्स से होता है, मोटाइल टाइप के हैं, और या कि फिर जो है वो नॉन मोटाइल होंगे तो थिक वॉल्ड रहेंगे, उनको बोला जाएगा अप्लानोस्पोर्स। स्पोर्स जो है वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम यानी स्पोर सैक के अंदर। फिर उसके बाद में जाइगोस्पोर जो फॉर्म होता है दो गैमेट्स के फ्यूज़ होने से, एक्चुअली इट इज़ जाइगोट, फिर उसके अंदर डिवीज़न होता है। गैमेट्स जो है अगर सिमिलर साइज़ के हैं, सिमिलर शेप के हैं तो आइसोगैमस बोलेंगे, अगर डिसिमिलर हैं तो एनाइसोगैमस। उसके अंदर नॉर्मली फीमेल गैमेट बड़ा होता है तो उसको ओगैमस टाइप बोलते हैं। कॉमन इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो हैं म्यूकर, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है, अल्ब्यूगो है, पैरासाइटिक फंगस है मस्टर्ड के ऊपर। तो ये है फाइकोमाइसिटीज़ का ग्रुप। ये यहाँ पर डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि फाइकोमाइसिटीज़ में अल्ब्यूगो है इस तरफ, और यहाँ पर जो है वो म्यूकर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी। ये रस्ट डिजीज़ कॉज किया हुआ है यहाँ पे।
नेक्स्ट जो ग्रुप है इट इज़ द एस्कोमाइसिटीज ग्रुप. सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज द सैक फंजाई, क्योंकि सैक लाइक इनका स्ट्रक्चर रहता है. यूनी सेलुलर हैं, एक सेल वाले. सैक्रोमाइसिस जो है मतलब ईस्ट, या इसको बेकर्स ईस्ट या ब्रेवर्स ईस्ट बोलते हैं, इसी में इंक्लूडेड है. कुछ मल्टी सेलुलर मतलब मैक्सिमम तो मल्टी सेलुलर है और कुछ जो है वो यूनिसेलुलर है. पेनिसिलियम इसमें आ जाएगा. सेप्रोफाइटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, मतलब काउ डंग के ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं. माइसिलियम जो है वो ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है. आसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ये कोनिडिया होते हैं, जो कि चेन के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स पर, जिनको कोनिडियोफोर बोला जाता है. और कोनिडिया जो है वो जर्मिनेट होकर के माइसिलियम बनाते हैं. सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज एस्को स्पोर्स, जो एंडोजीनियसली सैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. और कॉमन एग्जांपल इसमें है एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा, जिसमें न्यूरोस्पोरा को जो है वो एक्सटेंसिव बायोकेमिकल और जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है. बहुत सारे इसके मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको मोरल्स और ट्रफल्स बोलते हैं, जो कि एडिबल होते हैं, डिलीशियस होते हैं खाने में, और इनकी जो है अलग अलग टाइप की डिशेस बनती हैं. तो न्यूरोस्पोरा और एस्परजिलस का मैंने यहाँ पर जो है वो डायग्राम शो किया है. नेक्स्ट थर्ड क्लास है इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़. सो बेसिडियोमाइसिटीज़ तीसरी क्लास है. फाइकोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ हमने स्टडी कर लिया. नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज़. बेसिडियोमाइसिटीज़ जो होते हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड एज मशरूम भी बोलते हैं इनको, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, पफ बॉल भी बोलते हैं, और एक नाम है दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लब फंजाई. वेट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई. तो इनको क्लब फंजाई भी बोला जाता है, ब्रैकेट फंजाई भी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्री ट्रंक के ऊपर इस तरह से सब ब्रैकेट या ब्रैकेट शेप में ग्रो हो जाते हैं. ये सॉइल पर ग्रो होते हैं, या कि वुडन लॉग्स के ऊपर, या कि ट्री मॉइस्ट ट्री ट्रंक्स के ऊपर ग्रो होते हैं. रस्ट और स्मट इसमें कॉमन है. माइसिलियम जो होता है ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है. आसेक्सुअल स्पोर्स नॉर्मली अब्सेंट होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आसेक्सुअल स्पोर्स जो है अब्सेंट होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है. सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं इसके अंदर, लेकिन प्लाज्मोगेमी यानी फ्यूज़न ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ फंजाई ये होता है बाय टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स. कैरियोगेमी और मियोसिस जो है वो बेसिडियम के अंदर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियो कार्प बोलते हैं, उसके अंदर बेसिडियो स्पोर्स रहते हैं. और ये जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम पर. बेसिडिया जो होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज़ के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. कुछ कॉमन मेंबर्स इसमें हैं, अगैरिकस हैं, यूस्टिलेगोस्मट है, और प्यूसिनिया है, जिसको रस्ट फंजाई बोलते हैं. नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी है, इट इज़ कॉल्ड द ड्यूटेरोमाइसिटीज़. ड्यूटेरोमाइसिटीज़ जो है इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टाई. रीज़न इम्परफेक्ट फंजाई बोलने का ये है कि इनके अंदर जो है वो ओनली असेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज जो है वो प्रेजेंट रहती है, और जब सेक्सुअल फॉर्म जो है इनके डेवलप हो जाते हैं तो इनको राइटली जो है जिस क्लास को ये बिलोंग करते हैं वहाँ पर इनको प्लेस किया जाता है. So it is also possible that asexual and vegetative stages have been given one name, और बाद में जब उसको जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर रख देते हैं, और फिर सेक्सुअल स्टेज जब डेवलप होती है तो उसको जो है वो कोई दूसरा नाम दे करके किसी सूटेबल अदर क्लास के अंदर उसको क्लासीफाई कर देते हैं. तो इनको जो है यहाँ से निकाल करके नॉर्मली जब सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप होती हैं तो इनको या तो ड्यूटेरो के अंदर और या के फिर जो है वो बेसिडियो के अंदर रखते हैं. फाइको के अंदर इसलिए प्लेस नहीं करते क्योंकि फाइकोमाइसिटीज़ जो है वो प्रिमिटिव टाइप के फंगस होते हैं. तो ओनली असेक्सुअल स्पोर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, जिनको कोनिडिया बोलते हैं, और माइसिलियम जो है वो सेप्टेट ब्रांच्ड होता है. सेप्रोफाइटिक रहते ही हैं एज यूजुअल. तो कॉमन जो मेंबर हैं उसमें आ जाते हैं अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा. मिनरल की रिसाइकलिंग में भी ये हेल्प करते हैं. सी वी आर टेकिंग अ वेरी क्विक रिवीजन, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है
तो हमको जो है वो सारा कुछ इसमें कवर करना है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पहले मैंने लिखे हैं। नियर अबाउट जो है मेरे को 4 से 5 घंटे लगे हैं ये पूरा सेट बनाने में, और उसके बाद में फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो आप लोग जो है उसको देखते जाइए, और एक बार उसको जो है वो एक बार में तो नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 बार जो है उसको रिकॉल करना होगा चैप्टर को, तभी ये चैप्टर जो है वो अच्छे से याद हो पाएगा। नेक्स्ट 2 और किंगडम है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया। तो ये दोनों किंगडम जो है इनको तो यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इनके लिए 2 सेपरेट चैप्टर्स हैं। जैसे अभी जो बेसिक फीचर्स हैं मैं यहाँ पर बता करके आगे बढ़ता हूँ। सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ये इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं ये अपनी नाइट्रोजन डिमांड को पूरा करने के लिए जो है इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं। जैसे इसमें ब्लेडर वर्ट है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ड्रॉसेरा है, ड्रासेना है, ये आ जाते हैं। कुछ जो है वो पैरासाइटिक होते हैं जैसे कस्कुटा है। लाइफ साइकिल जो है वो 2 फेजेस में डिवाइड होती है। इसको जो है वो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक फेज़ बोलते हैं, और ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइटिक फेज़ एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। इसी को बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किंगडम प्लांटे में अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इंक्लूडेड है। डिटेल में हम लोग इसके बाद के चैप्टर में इनको स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। नो एनिमल किंगडम भी हमको अलग से स्टडी करना है। तो इसके अंदर जो है वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है टोटली एनिमल लाइक होलोजोइक, जो कि इंजेशन से ऑब्टेन होता है। फूड रिजर्व फूड जो होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कुछ बहुत लोअर एनिमल्स हैं जैसे पोरीफेरेंस, वहाँ पर बर्डिंग से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हायर फॉर्म्स जो हैं उनके पास में अलग अलग टाइप के सेंसरी और न्यूरोमोटर ऑर्गन्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन। नेक्स्ट कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया गया है, उनको हमको अलग से स्टडी करना है। जैसे वायरसेस हैं, वायरोइड्स हैं और लाइकेंस हैं। तो इनको यहाँ पर हम लोग सेपरेटली स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है आ जाते हैं वायरसेस। तो ग्रीक वर्ड वायरस जो है ये वायरियन से निकाला हुआ वर्ड है, जिसका मतलब होता है वेनम और पॉइजन। 5 किंगडम सिस्टम में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था, इन तीनों को इंक्लूड नहीं किया गया, इसके लिए हम लोग इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं। सो वायरसेस के कुछ जनरल फीचर्स हैं। नॉन सेलुलर होते हैं जब तक ये अपने होस्ट के बाहर रहते हैं, जब तक के इनर या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। और वंस दे इंटर इनटू देयर होस्ट, तो ये अपने होस्ट की रेप्लिकेशन मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। वायरसेस को जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पर रखा जाता है, और ये होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। 2 मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी वायरस के, एक होता है उसका प्रोटीन जिसको कैप्सिड भी बोला जाता है, और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए या आरएनए। अब डीएनए डीएस डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, या सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। और आरएनए भी जो है वो डीएस आरएनए हो सकता है या एसएस आरएनए हो सकता है। डीजे आइवानोस्की, इसने जो है वो सबसे पहला वायरस जो है वो आइडेंटिफाई किया था, और उसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। लेकिन जो टर्म वायरस है ये दिया था लुइस पास्चर ने। वायरसेस जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज़ में, इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं। नियर अबाउट 20 से 500 नैनोमीटर तक हो सकते हैं, और 700 से 1000 nm इन लेंथ हो सकते हैं। तो इसीलिए बैक्टीरियल फिल्टर्स जो होते हैं उनको वायरसेस जो है वो ईज़िली क्रॉस कर लेते हैं। और इसको सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था M.W. बेजेरनिक ने 1898 में। इसने जो है एक अफेक्टेड प्लांट था, मोज़ेक डिजीज़ से अफेक्टेड प्लांट था, उसके लीफ को क्रश करके एक फ्लूइड बनाया था, और उस फ्लूइड को हेल्दी लीफ के ऊपर जब पोर किया था तो जो हेल्दी लीफ थी उसके ऊपर भी जो है वायरस स्प्रेड हो गए थे। तो इसलिए जो वायरसेस को जो नाम दिया था, दैट नेम विच वॉज गिवन बाय बेजेरनिक, इट वॉज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, मीन्स इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। सबसे पहले 1938 में
WM स्टैनली, इसने जो है इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया था। वायरसेस जो होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ेस के लिए जाने जाते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे ब्रिंजल में लिटिल लीफ डिजीज़ है, मोज़ेक डिजीज़ है लेडी फिंगर के अंदर, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है जिसके ऊपर जो है वो पैचेस आ जाते हैं, लीफ कर्ल डिजीज़ है पपाया में, बंची टॉप डिजीज़ है बनाना के अंदर, ग्रासी शूट है शुगर केन के अंदर, और ऐसे ही एनिमल्स के अंदर जो है वो डिफरेंट डिजीज़ेस वायरसेस से कॉज होती है, जैसे राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड कॉज होता है। फिर उसके बाद में स्मॉल पॉक्स जो है वो वेरियोला जोस्टर से कॉज होता है, मम्स जो है मिक्सो वायरस से कॉज होता है, मॉर्बिली वायरस से मीज़ल्स कॉज होते हैं, एड्स के लिए जो है वो रेट्रोवायरस HIV रिस्पॉन्सिबल होता है, स्वाइन फ्लू के लिए H1N1 वायरस है, येलो फीवर के लिए फ्लेवी वायरस है। ऐसे डिफरेंट डिजीज़ेस एनिमल्स के अंदर कॉज करते हैं ये। तो ये इनका कुछ जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है कि इनको स्टडी करने से हमको जो है वो डिज़ीज़ का पैटर्न समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ टेबल के अंदर वायरल डिजीज़ेस लिखे हुए हैं जो ह्यूमन बीइंग में कॉज होते हैं, और राइट हैंड साइड में जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरियल वायरस है उसका डायग्राम है। फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं वायरोइड्स, इनको थियोडोर डाइनर ने 1971 में इंट्रोड्यूस किया था, और ये एक्चुअली होते हैं वायरोइड्स जो होते हैं दे आर द फ्री RNA विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन अब्सेंट होता है तो ये इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स होते हैं। और जो कॉमन वायरोइड है वो है PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड, ये इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। तो RNA जो वायरोइड का होता है ये बहुत लो मॉलिकुलर वेट का होता है, मीन्स दे आर इवन स्मॉलर देन द वायरसेस। नेक्स्ट जो है वो है प्रायोन्स। प्रायोन्स जो होते हैं दे आर द इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, एक्चुअली जो है ये माल फॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, मतलब पूरी तरह से फोल्ड नहीं हो पाते हैं, तो ये प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। इनको प्रोजीनर ने 1983 में आइडेंटिफाई किया था, और रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंट प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं। तो कॉज होते हैं ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन, सो दे आर माल फॉर्म्ड ड्यू टू सम फोल्डिंग डिफेक्ट्स, प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। दे कैन ऑल्सो एक्ट्स एज द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह भी जो है वो काम कर सकते हैं। और प्रायोन्स जो होते हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंजाइम, प्रोटीएज, न्यूक्लियस और अदर टाइप के जो जैसे हाई टेम्परेचर वगैरह UV रेडिएशन है इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करते। एक कॉमन डिजीज़ है इसकी वजह से जो कॉज होती है वो है मैड काउ डिजीज़, या कि क्रूज़फोल्ड जैकबसन्स डिजीज़, या कि कुरू। कुरू एक तरह का न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलता है, न्यूरो और मस्कुलर है। तो पूरी बॉडी जो है वो श्रिंक हो जाती है और बहुत ही लीन हो जाती है, बॉडी दुबली हो जाती है इसमें। नेक्स्ट जो है वो है लाइकेंस का ग्रुप। सो लाइकेंस जो होते हैं दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अलगी एंड फंजाई। नॉर्मली जो यहाँ पर अलगी होती है वो ब्लू ग्रीन अलगी होती है, तो जो अलगल कंपोनेंट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, इसको फोटोबायोंट या के फाइकोबायोंट कहा जाता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायोंट कहते हैं। तो फोटोबायोंट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है और माइकोबायोंट जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है। अलगी जो है वो फंगस के लिए फूड प्रिपेयर करती है, और बदले में फंगस उसको रहने के लिए जगह देती है अपने माइसीलिया के अंदर। इनके बीच में जो एसोसिएशन होता है इतना ऑब्लिगेट और इतना क्लोज होता है कि अगर हम लोग इनमें से एक को निकाल दें तो दूसरा जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लाइकेंस जो होते हैं ये बहुत साफ़ सुथरी जगह पे ग्रो होते हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज द गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि ये नॉर्मली जो है वो सल्फ़र जो पॉल्यूटेड एरिया होते हैं वहाँ पर ग्रो नहीं होते, सो दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज़। तो यहाँ तक कि हमने जो है इसको स्टडी कर लिया, हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। सो 2 चैप्टर अभी तक के हमारे जो है इस यूनिट में हो चुके हैं। एक फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड वाला, और उसके बाद में ये वाला चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।